Good morning, students. Good morning, 8th standard. This is Mr. Kiran now. Today we are going to learn lesson number 3, and that is effects of British rule. Effects of British rule. Okay, let us learn. Let us see. Page number 10. Page number 10. Take out your history book. Page number 10. Lesson number 3. Effects of British rule. Keep a pencil in your hand. Okay. Keep a pencil in your hand. Effects. What do you mean by effects? Effect का क्या होता है? Effect यानी परिणाम. Okay. और a change is caused by something. A change is caused by something or a result, that means effect. Effect of British rule. In this chapter, we are going to study the effects of British rule over India. British जो थे ब्रिटिशर जो अपने ऊपर राज्य कर रहे थे, उसके से क्या क्या नतीजे हुए, क्या क्या परिणाम हुए, वो हमें देखना है. Okay. Establishment of East India Company. East India Company की स्थापना. Establishment स्थापना. We have seen that due to geographical discoveries, the European powers reached the Indian coast. किसकी वजह से geographical discoveries यानी क्या हुआ, भौगोलिक यानी जो डिस्कवरीज हुई उसकी वजह से क्या हुआ कि यूरोपियन पावर जो थे वो इंडिया के कोस्टल रीजन तक पहुंच गए. All the European, including Portuguese, Dutch, French and British, entered the race for capturing the Indian market. और फिर सारे ये जो states थे, countries थे, European, including Portuguese, Dutch, French और British, ये सारे इन लोगों में competition लग गई इस बात की for capturing Indian market. Okay. When the British came to India, जब for trade purpose, जब British India में आए किसके लिए, व्यापार करने के हेतु, the Portuguese had already settled here. Portuguese पहले से ही यहाँ पर आके सेटल हुए थे. And they gave a bitter resistance. और उन्होंने जम के प्रतिकार किया था. ठीक है. Later friendly relations developed between them. लेकिन बाद में ब्रिटिश और पोर्तुगीज इन दोनों में फ्रेंड रिलेशन स्थापित हो गए. Okay. Then, but due to established domination over India, the British had to face opposition from French, Dutch and local rulers. बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपना वर्चस्व पहले से ही बना के रखा था, इसलिए ब्रिटिश लोगों को फ्रेंच, डच और लोकल रूलर्स, वहाँ के जो राज्य कर रहे थे इंडिया में, जो लोकल रूलर्स थे, राजे थे, उनका भी विरोध सहना पड़ा. ओके. ब्रिटिश एंड मराठास. मुंबई वाज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया. मुंबई क्या ये एक महत्वपूर्ण सेंटर था ब्रिटिश इंडिया के लिए. ठीक है, ब्रिटिशर्स के लिए, वेस्टर्न इंडिया के लिए. They were trying to acquire the nearby territories, but the Maratha had strong hold over it. उन्होंने कोशिश की, तो किस बात की कोशिश की, they were trying to acquire यानी मिलाने की, to get the nearby territory, near territory यानी प्रदेश, but the Marathas had strong hold over it. लेकिन उस प्रदेश पर किसका होल्ड था, वर्चस्व था, मराठा लोगों का. Okay. After the death of Peshwa Madhavrao, his uncle Raghunath Rao approached for help from the British due to his greed for पेशवेशिप. यानी क्या हुआ, जब माधवराव पेशवे की मृत्यु हुई, उनके बाद में उनके जो अंकल थे रघुनाथ राव पेशवे, वो उन्होंने हेल्पिंग हैंड दिया किसे, ब्रिटिशर्स को. और ब्रिटिशर्स ने उनको लालच दी कि अगर वो उनको हेल्प करते हैं तो ब्रिटिश उनको हेल्प करेंगे, किसके लिए, पेशवे पद प्राप्त करने के लिए. ओके. दिस लेड टू द एंट्रेंस ऑफ द ब्रिटिश इन मराठा पॉलिटिक्स. और इस तरह से ब्रिटिशर्स का मराठा पॉलिटिक्स में शिरका हो गया, एंट्री हो गई. ओके. ग्रीड मीन्स व्हाट, ग्रीड मीन्स डिजायर फॉर मोर पावर, फूड, ओके, मनी. नाउ during 1774 to 1880, there 3 wars were fought between the Marathas and the British. 3 युद्ध खेले गए मराठा और ब्रिटिश में. During this, the first war, the Maratha unitedly faced the British and hence proved superior. क्या हो गया, ड्यूरिंग द फर्स्ट वार, पहले वार में मराठा यूनाइटेडली फेस, मराठा ने एक होके उनका प्रतिकार किया और इसलिए वो सुपीरियर हो गए, यानी वो जीत गए. इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालभाई, सालभाई की ट्रीटी हुई, ट्रीटी यानी तह, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार केम टू एन एंड. और फिर पहला ये युद्ध था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, को समाप्त हो गया. देन सब्सिडरी अलायंस. In 1798, Lord Wellesley arrived in India as Governor General.
अंडरलाइन दिस, 1798 में कौन आया? लॉर्ड वेलेस्ली आया। वो कौन था? गवर्नर जनरल था, एज एन इंडिया का गवर्नर जनरल। हिज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मीन्स एम, was to establish the British dominion all over India, यानी ब्रिटिश लोगों की सत्ता पूरे इंडिया में प्रस्थापित करना, ये इसका लक्ष्य था। For this he signed the subsidiary alliance with many Indian rulers, और इसने क्या किया? subsidiary alliance साइन किया बहुत सारे इंडियन रूलर्स के साथ। According to this alliance, the Indian rulers were assured of British military help, यानी इसके मुताबिक ये अलायंस नहीं थी, उसके मुताबिक क्या करेंगे इंडियन रूलर्स? क्या करेंगे? assured of British military help, and there were some terms laid on them. The Indian rulers have to maintain British army in their court and have to pay cash or part of their territory to the company for its maintenance. और कुछ terms and conditions भी रखी गई, यानी ये ब्रिटिश मिलिट्री की हेल्प भी करेंगे, उसके साथ साथ द इंडियन रूलर्स जो थे वो ब्रिटिश आर्मी को उनके दरबार में जगह देंगे और उसके साथ साथ उनको कैश भी देंगे और कंपनी को कुछ पार्ट भी देंगे उनके राज्य का कंपनी के काम के लिए। ठीक है, द रूलर वुड नॉट हैव एनी अलायंस विथ एनी अदर पावर, और उसके साथ साथ जिनके साथ ये जो कंपनी है वो अगर जिस रूलर के साथ है ना वो दूसरे कोई राजा के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेगा। द रूलर वुड हैव नॉट एनी अलायंस, यानी किसी भी राज्य के साथ उसकी युति नहीं होगी विथ एनी अदर पावर, और डिक्लेयर वार अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश, यानी जब तक ब्रिटिश लोगों परमिशन नहीं देते तब तक वो राजा कितना ही कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। इन शॉर्ट he was the puppet. The ruler would accept a British resident in his state. Some Indian rulers accepted the system and lost their freedom. और जिन राजा लोगों ने ये सिस्टम एक्सेप्ट की उनकी रियासत खत्म हो गई। ठीक है, in 1802 बाजीराव सेकंड signed the subsidiary alliance treaty with the British. बाजीराव II ने साइन की subsidiary alliance, okay, treaty यानी तह। ठीक है, this alliance is well known as the Treaty of Vasai. इसी अलायंस को क्या कहा जाता है? वसई का तह। But this treaty was not acceptable to some Maratha Sardars. लेकिन ये कुछ मराठा सरदार को पसंद नहीं था। This led to the Second Anglo-Maratha War. और इसलिए क्या हो गया? दूसरा युद्ध हो गया, Second Anglo-Maratha War. After the victory of the British, there was increased interference of British into the Maratha state. और फिर इसमें ब्रिटिश लोगों की जीत हो गई और उसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस जो था वो मराठा स्टेट में और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, then this became intolerable and Bajirao II waged a war against the British. और ये जो था इसको ये सहन नहीं हुआ बाजीराव II को, और फिर क्या हो गया? उसने युद्ध छेड़ा। He was defeated, उसका पराभव हो गया in the battle, and in 1880 he surrendered to the British. और फिर बाद में वो ब्रिटिशर्स को शरण आया। In the meantime, the capital of Mughals was under the control of Daulat Rao Shinde. By defeating the troop of Shinde, General Lake captured the Mughal emperor and gained victory over Hindustan. और फिर देखो क्या हो गया? In the meantime, तभी the capital of Mughals, मुगल की जो राजधानी थी, was under the control of दौलत राव शिंदे. वो किसके अंडर थी? वहाँ पे कौन राज्य कर रहा था? दौलत राव शिंदे. By defeating the troop of शिंदे, ये शिंदे के जो लोग थे, सोल्जर्स ने उनको हराया। किसने? जनरल लेक ने। और उनका जो प्रदेश था वो काबिल हासिल कर लिया। ठीक है, एंड कैप्चर द मुगल एम्परर एंड गेन विक्ट्री ओवर हिंदुस्तान। ठीक है, और उन्होंने हिंदुस्तान पे राज्य करना शुरू कर दिया। छत्रपति प्रताप सिंह, although the Peshweship came to an end, छत्रपति प्रताप सिंह of Satara was still ruling. पेशवे पद तो खत्म हो गया, लेकिन पेशवेशाही खत्म हो गई, लेकिन ये जो थे कौन? छत्रपति प्रताप सिंह कहाँ के रहने वाले थे? सातारा के, लेकिन अभी वो वहां के राजे थे। ब्रिटिशर्स साइन अ ट्रीटी विद छत्रपति प्रताप सिंह एंड अपॉइंटेड ग्रैंड डक एज एन ऑफिसर टू असिस्ट हिम इन द स्टेट अफेयर्स। और फिर क्या किया ब्रिटिशर्स ने? उससे एक तह साइन करवा लिया ट्रीटी, और अपना एक ऑफिसर
जिनका नाम है ग्रैंड डक, उस ऑफिसर को उन्होंने इनकी मदद के लिए उनके दरबार में रख दिया। बट लेटर द छत्रपति हुआ डिथ्रोन्ड, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, एज पर देयर पॉलिसी उनको वो पद से हटाया, डिथ्रोन किया एंड एक्साइल यानी हद्दपार कर दिया टू काशी। ही डाइड देयर इन 1847। Then Rango Bapuji Gupte, a loyal officer of the Chhatrapati, fought the legal battle and went up to England, but his efforts were unsuccessful. एक ऑफिसर था, लॉयल ऑफिसर था, लॉयर एकनिष्ठ, इसका छत्रपति प्रताप सिंह का, जिनका नाम क्या था, रंगो बापूजी गुप्ते। ओके, और उन्होंने ही फॉट द लीगल बैटल, और वो कहां तक गए, वेंट अप टू इंग्लैंड, बट हिज एफर्ट्स वेयर अनसक्सेसफुल। लेटर लॉर्ड डलहौसी, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। लेटर लॉर्ड डलहौसी रिजेक्टेड द एडॉप्शन पॉलिसी एंड इन 1848 एनेक्स द स्टेट ऑफ सातारा। और इन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौसी जो थे, उन्होंने एडॉप्शन पॉलिसी नामंजूर की और 1848 में सातारा संस्थान उन्होंने अपने इसमें और जोड़ दिया। छत्रपति प्रताप सिंह, डू यू नो, छत्रपति प्रताप सिंह मेड प्रोविजन ऑफ वाटर टू द सिटी बाय बिल्डिंग अ वाटर टैंक ऑन द बैक साइड ऑफ यवतेश्वर टेम्पल एंड महादरा इन सातारा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, छत्रपति प्रताप सिंह ने, देखो उन्होंने वाटर टैंक बनवाए। ओके, एंड देन रोड्स बनवाए, रोड्स वेयर बिल्ट, ट्रीज वेयर प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। ओके, and then schools were built for boys and girls for teaching Sanskrit, Marathi and English. Printing press was set up, printing press भी set up की, and many useful books were published. In 1827 Sabhaniti, a book on polity, polity means polytechnics. Okay, politics, not polytechnic, politics, Rajkaran, polity means Rajkaran, was printed. He built a road from Satara to Mahabeshwar to Pratapgarh. The same road further extended to Mahar. Chhatrapati Pratap Singh used to write personal daily diary. वो क्या लिखते थे, अपनी रोज डायरी लिखते थे। Okay, effect of British rule on India. Now, dual government. Robert Clive in 1765 introduced the dual government system in Bengal. Dual government system किसने लाई? Underline this sentence, Robert Clive. Okay, the company undertook the work of revenue collection, whereas the Nawab of Bengal had to maintain law and order. उन्होंने क्या किया, the company जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कौन सा काम करेगी, रेवेन्यू कलेक्शन, सारा जो था वो उसके कलेक्शन का काम करेगी, whereas the Nawab of Bengal had to maintain law and order. और बंगाल का नवाब क्या देखेगा, कायदा और सुव्यवस्था। This was known as dual government system. The ill effects of dual government system could be seen after certain time period. कुछ दिनों बाद इसके भी इफेक्ट दिखने लगा। Money in the form of taxes went into the pockets of the company officers. और फिर धीरे धीरे क्या होता गया, मनी जो था वो टैक्स के नाम से लोगों से उकलवाते थे और कंपनी के ऑफिसर्स अपनी जेब भरते थे। The monopoly of trade in India was given to East India Company and hence many trading companies in England envied them. क्या हो गया, फिर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनकी ट्रेड में उनकी मोनोपोली थी, यानी एकस्वाक अधिकार था, और इसलिए एंड हेंस मेनी ट्रेडिंग कंपनीज इन इंग्लैंड में जो बाकी ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको यहाँ पे आके व्यापार करने ही नहीं देते थे, वो जेलस होते थे। ठीक है, द वर्किंग सिस्टम ऑफ द कंपनी इन इंडिया रिसीव्ड क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड सम इंपॉर्टेंट लॉज टू कीप कंट्रोल ओवर द कंपनी। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कंप्लेंट भी गई कहाँ पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और फिर उन्होंने क्या बनाए, कुछ कायदे बनाए किसके लिए, ये कंपनी के ऊपर अंकुश पाने के लिए। ठीक है, पार्लियामेंट्री लॉज according to regulating act of 1773 the Bengal governor came to be known as the Governor General. According to this act, Lord Warren Hastings became the Governor General of India. Underline this, Lord Warren Hastings became the Governor General of India. He got the right, उन्हें कौन सा अधिकार मिला, टू कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ मुंबई एंड मद्रास प्रोविंस, यानी मुंबई प्रोविंस यानी प्रदेश, ओके, प्रोविंस यानी प्रदेश। he got the right to control the policies of Mumbai and Madras province. A committee of 4 members was set up to assist him, और उसके हेल्प के लिए एक समिति भी बिठाई गई 4 लोगों की। In 1784
Pitt's India Act was passed. The act provided for appointment of a permanent board of control for better regulation and management of affairs of the East India Company in India. देखो see here the act provided, ये act ने क्या provide किया 1784 में जो act पारित हुआ, क्या नाम है उसका, Pitt's India Act. The act provided for appointment of a permanent board of control. किसकी अपॉइंटमेंट, परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, किसके लिए, फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट के लिए ऑफ अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कामकाज करने के लिए. इन 1813, 1833 एंड 1853 न्यू लॉज वर पास, नए कायदे पारित हुए बाय द पार्लियामेंट, संसद की तरफ से, टू मेक सर्टेन चेंजेस इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के कामकाज में कुछ चेंजेस होने चाहिए इसके लिए. इन दिस वे they are involved and indirect control of the British government on the administration of East India Company. With the emergence of British rule, a new administrative system got developed in India. Civil services, military, police force, and judicial system became the main pillars of British administration in India. Underline this sentence: civil services, okay, military, police force, and judicial system became the main pillars. ये क्या थे, main pillars थे जिसके ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यानी ब्रिटिश राज्य कारभार जो कर रहे थे ना, ये इस पे आधार पे ही कर रहे थे. These are the main pillars of British administration in India. Now civil services. To strengthen the British rule in India, there was a need of bureaucratics. Bureaucratics is an official in the government department. Lord Cornwallis introduced bureaucracy. Civil services became an important part of British government. He restricted the private trade carried out by the company officers, and for this purpose he increased their salary. इसने क्या किया? Lord Cornwallis introduced bureaucracy. ठीक है. Civil services became an important part of British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा था, सिविल सर्विसेज. ही रेस्ट्रिक्टेड, उसने बंधन लाए द प्राइवेट ट्रेड, इस पे प्राइवेट ट्रेड पे कैरिड आउट बाय द कंपनी ऑफिसर्स, वो कौन कर रहे थे, कंपनी के ऑफिसर्स कर रहे थे. एंड फॉर दिस पर्पस ही इंक्रीज देयर सैलरी. उन्होंने वो व्यापार प्राइवेटली नहीं करना चाहिए, इसने उसने क्या किया, इनकी सैलरी यानी पगार बढ़ाया. फॉर द कन्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटोरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट. और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन यानी अच्छा कारभार, राज्य कारभार करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने जितना भी प्रदेश ऑक्युपाई किया था, काबिज किया था, उसने उसका डिवीजन कर दिया. इसमें डिस्ट्रिक्ट में, जिले में. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज कौन देख रहा था, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. ही वाज रिस्पांसिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. वो ही रिस्पांसिबल रहता था किसके लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए. गिविंग जस्टिस, न्यायदान के लिए. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कायदा और सुव्यवस्था बनाने के लिए उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की यानी जिले की. द ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस नोन एंड इंडियन सिविल सर्विसेज. और उसके लिए जो ऑफिसर्स जो रहते थे काम करने के लिए, उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह से की जाती थी, उन्होंने एग्जाम रखी थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस, ICS. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर वी स्टॉप and we will see the remaining lesson tomorrow. Okay, now here we stop. My period is over. Okay, we will see the remaining portion, remaining lesson tomorrow. Bye bye, take care.